بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 17 جون ہے، جمعۃ المبارک کا دن، شام کا وقت۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک دفعہ پھر نئی کہانی، نیا سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کی کہانی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ ایک ٹیچر کی ہے، ایک استاد کی۔ ظاہر ہے استاد تو استاد ہوتا ہے، میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، سب کے ہوتے ہیں استاد، اور دنیا میں کامیابی کے لیے استاد کا ہونا ایک بنیادی جزو ہے، ایک نیسیسری ایلیمنٹ ہے۔ استاد کے بغیر ترقی تو کیا، ترقی کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ استاد کی اہمیت کو اگنور کر کے اگر استاد کی ضرورت نہ ہوتی تو لوگ کبھی بھی اسکول نہ بھیجتے، بلکہ اسکول بنائے ہی نہ، گھر میں بٹھا کر بچوں کو پڑھا لیں۔ ایسا نہیں ہے، استاد کی اور ادارے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ استاد کی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ایک استاد صاحب تھے، ٹیچر تھے، اسکول میں پڑھانے جاتے تھے۔ ایک دن وہ صبح صبح اپنی سائیکل پر سوار ہو کر آرام سے چلتے چلتے، سائیکل چلاتے چلاتے جا رہے تھے اپنے اسکول کی طرف، اور ان کی نظر پڑی ایک بچے پر جو وہاں گلی کی نکڑ پہ بیٹھ کر جوتے پالش کر رہا تھا۔ ٹیچر صاحب کے ہاتھوں نے بریکس لگا دی۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بچے صبح سے کتنے پیسے کما لیے، اور بچہ رونے لگ گیا، کہنے لگا میرے پاس تو کوئی گاہک ہی نہیں آیا۔ ٹیچر نے جلدی سے اپنے جوتے اتارے اور اس کے سامنے رکھ دی، کہا میرے جوتے پالش کرو، میں تمہارا فرسٹ کسٹمر ہوں، میں تمہارے آج کے دن کا پہلا گاہک ہوں، میرے جوتے صاف کرو، پالش کر دو۔ خیر بچے کے چہرے پہ کچھ خوشگواری، کچھ مسکراہٹ آئی کہ چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے، بونی تو ہوئی، پہلا گاہک تو ملا، فرسٹ کسٹمر آف دا ڈے تو مل گیا۔ وہ بھی پالش کر رہا تھا، استاد صاحب سے کہنے لگا سر آپ کرتے کیا ہیں، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں ٹیچر ہوں اسکول میں۔ اب بچے نے ان سے دوسرا سوال یہ کیا کہ سر یہ بتائیں کہ میں بھی بڑا آدمی بن سکتا ہوں؟ استاد صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور انہوں نے کہا وائی ناٹ، کیوں نہیں مائی چائلڈ، مائی سن، دنیا میں ہر شخص، ہر بچہ بڑا آدمی بن سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ اب اس کا تیسرا سوال بچے کا فوری طور پر، سر وہ کیسے، میں کیسے بڑا آدمی بن سکتا ہوں؟ استاد صاحب نے کہا جوتے میرے پالش ہو گئے، مجھے دو اور میرے ساتھ سائیکل پہ بیٹھو، اپنی دکان بند کرو، میرے ساتھ سائیکل کے پہ اوپر بیٹھو، آج کی دہاڑی تمہیں میں ادا کروں گا اپنی پاکٹ سے۔ ان کو بٹھایا اور اپنے اسکول میں لے گیا۔ ایک کلاس روم ابھی خالی تھا، بچے ابھی آئے نہیں کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا اسکول کا۔ استاد سے نے پوچھا کہ بیٹا آپ کا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں ترقی کیسے کر سکتا ہوں، مجھے وہ سیکریٹ بتا دیں، مجھے وہ راز بتا دیں جس پر عمل کر کے میں بڑا آدمی بن جاؤں، ترقی کر لوں۔ استاد صاحب نے جلدی سے مارکر پکڑا اور وائٹ بورڈ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے پیرالل، برابر 3 لکیریں لگائیں وائٹ بورڈ پہ، اس طرح سے۔ 3 لکیریں لگا دی، اور 3 لکیروں کے اوپر سب سے اوپر والی لکیر میں انہوں نے لکھا محنت، محنت اور صرف محنت۔ پہلی لکیر پہ یہ لکھ دیا، دوسری پہ لکھا ایمانداری، ایمانداری اور صرف ایمانداری، 3 دفعہ لکھ دیا۔ تیسری اور آخری لکیر کے اوپر لکھا کہ ہنر، ہنر، ہنر اور صرف ہنر۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے لکھ دی۔ اب بچہ جو تھا جس نے اسکول کا اور کلاس کا منہ ہی نہیں دیکھا تھا کبھی، وہ کیسے سمجھ پاتا؟ وہ نہ ہوا میں معلق تھا، اس کے چہرے پہ حیرانی تھی کہ یہ کیا بتا رہے ہیں۔ کہنے لگا سر آپ نے سب سے پہلے لکھا ہے محنت، محنت کیا میں نہیں کرتا؟ استاد نے کہا سنو، دنیا کے 70% لوگ ہیں
नो, 70 भी नहीं, 90% लोग हैं दुनिया में, एक सर्वे के मुताबिक, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 70% दुनिया के लोग मेहनत नहीं करते, सुस्त होते हैं, काहिल होते हैं, लापरवाह होते हैं, मगर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। बगैर मेहनत के ये मुमकिन नहीं है। उनको तरक्की के जीने तय करने के लिए मेहनत की सीढ़ी को अपनाना होगा। अगर आप मेहनत करना शुरू कर देते हो तो फिर समझ लो कि आप 90% लोगों की फहरिस्त से खारिज होकर मेहनती लोगों की 10% वाली फहरिस्त में आ गए हो। ये बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी। और दूसरी चीज दयानतदारी, ईमानदारी। अब बच्चे ने कहा जी ईमानदारी तो हम सब में है, इसको भी एक्सप्लेन करें, लेकिन उस्ताद ने बुरा नहीं माना, बल्कि उससे पूछे बगैर उसको तशरीह करके बताई कि ईमानदारी क्या है और कैसे ईमानदारी, दयानतदारी पे अमल किया जा सकता है। उसको कहा बच्चे बेटा देखो 4 एलिमेंट्स हैं बुनियादी तौर पर ईमानदारी के, कारोबार के लिहाज से, तरक्की के जीने तय करने के लिहाज से 4 पिलर्स हैं, 4 सतून हैं। नंबर 1 इज वादा। वादा अगर किसी से करो अपने कारोबार के लिहाज से तो उस पर पूरा उतरो, उस हिसाब से सोच समझ कर वादा करो जिससे आप पूरा उतर सकते हैं। वादा खिलाफी करने वाला बंदा दयानतदार लोगों की फहरिस्त से खारिज हो जाता है। उसने कहा ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई। उस्ताद साहब ने कहा दूसरी चीज ईमानदारी का दूसरा पिलर सच गोई, झूठ से इज्तिनाब करना, ये दयानतदारी का दूसरा पिलर है। सेकंड पिलर ऑफ द ऑनेस्टी, कि झूठ नहीं बोलना, अपने किसी सूरत में सच बोलें, वरना आपकी रोजी से, आपकी कारोबारी से बरकत ही उठ जाएगी। आप जितना मर्जी मेहनत करते रहो आप कामयाब नहीं हो सकते। दूसरा पिलर ये है, ऐसे गौर से देख लो, सुन लो और अपने दिमाग में महफूज कर लो। तीसरा पिलर ईमानदारी का, जब किसी से कोई जबान करो, जबान से कोई वादा कर लो, जब किसी से कोई वादा कर लो तो उस वादे की एफा करो, वफा करो वादे को। जब किसी को कोई जबान दे बैठो तो उस पर पूरा उतरो। और नंबर 4 चौथा पिलर क्या है जी? अपनी गलती का एतराफ करना सीख लो। लिख लो अपने दिलो दिमाग में, अगर आपसे कोई गलती सरजद हुई है तो फराख दिली से आगे बढ़कर सबसे पहले किसी के कहने के बगैर अपनी गलती तस्लीम करो और माफी मांगो जिसके साथ आपने गलत किया है। ये अपनी गलती पर डट जाना, अपने झूठ पर पक्का हो जाना इबलीसी अलामत है, इबलीस की। क्योंकि जो गलती कभी ना करे वो फरिश्ता होता है, जो गलती करके माफी मांग लेता है, तस्लीम कर लेता है, वो इंसान है। और जो अपनी गलती पर डट जाता है वो शैतान है, इबलीस है। ये तीनों की तीनों सिफात अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुद बनाकर हमें दिखा दी हैं कि फरिश्ता क्या है, इंसान क्या है और इबलीसियत क्या है। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैंने दूसरी बात भी आपकी सुन ली, समझ ली, अपनी पल्ले बांध ली। अब मुझे तीसरा और आखिरी लाइन पे जो आपने लफ्ज लिखा है 3 दफा, हुनर हुनर हुनर। उन्होंने कहा जी बच्चे, तरक्की के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए आपके पास हुनर का होना जरूरी है। कोई ना कोई हुनर, कोई कुछ भी सीख लो। अब देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया मेहनत में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले दुकान आपकी खुलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज की हो, चाहे वो आपने रेडी क्यों ना लगाई हो। सबसे पहले दुकान खोलें और सबसे आखिर में बंद करें। ये मेहनत का जुज्व है। और पूरा टाइम दें, अपने कारोबार से मोहब्बत करें, ये मेहनत की अलामत है।
अपने ग्राहकों को हर वक्त मैसर रहें, दस्तयाब रहें, ये आपकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है, ये मेहनत ही का हिस्सा है। मगर 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 का लफ्ज देखें, उस्ताद साहब के मुंह से निकल गया, टीचर के। उन्होंने कहा कि मेहनत का कामयाबी में हिस्सा 30% है। मेहनत का हिस्सा कामयाबी में, बड़ा आदमी बनने में 30% है। दयानतदारी और ईमानदारी का जो परसेंटेज है बड़ा आदमी बनने में, वो 50% है। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो इसका मतलब है आप दुनिया के 30+50 टोटल, मैं लिख दूं आपको, फिर ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। ये मेहनत का हिस्सा 30%, ईमानदारी दयानतदारी का 50%, और ये बाकी रहे 20%, ये हुनर का हिस्सा। ये परसेंटेज देखें जो टीचर ने उनको बताई कि मेहनत का हिस्सा जो है वो 30%, ईमानदारी का 50% और हुनर का 20% है। अगर आपके पास हुनर कोई नहीं है बेटा, आपके पास हुनर कोई नहीं है ना, तो इसका मतलब है आप 30+50, ये दो चीजें अगर आप में हैं, हुनर नहीं है, तीसरी मिसिंग है, तो आप 80% दुनिया के कामयाब आदमी हो। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जिनके पास अपना कोई हुनर नहीं है, लेकिन वो जहाजों को उड़ाए फिरते हैं, अपने जहाजों पे सैर करते हैं यहाँ वहाँ। लेकिन अगर आप 100% तरक्की चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो ये 20% को मिस ना करो। अगर ये भी आपके पास आ जाते हैं तो आप यकीनन 100% तरक्की की राह पर गामजन हो चुके हो और आप अपनी मंजिल को जल्द पालोगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ हुनर है तो आप सिर्फ 20% तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हो। आपके पास अगर मेहनत और ईमानदारी नहीं है, ये पहली दोनों चीजें मिसिंग है, तो आप सारी जिंदगी किसी की मुलाजमत तो कर सकते हो मगर बड़ा आदमी नहीं बन सकते, अमीर आदमी नहीं बन सकते, तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए कि बहुत से लोग दुनिया में हैं जिन्होंने हुनर सीखा है लेकिन बेईमानी करते हैं, मेहनत से जी चुराते हैं। फिर उसका नतीजा क्या होता है कि बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, मगर मेहनत नहीं करना चाहते, दयानतदारी और ईमानदारी से जी चुराते हैं। इसको हम नहीं समझते कि ये तो आम सी चीजें हैं, मौलवियों के कहने की बातें हैं। इनसे क्या होता है? बंदे के पास हुनर होना चाहिए। अब ये उस्ताद की तकसीम है, ये मैं आपको अपने पल्ले से नहीं बता रहा, कहीं से पढ़कर आपको डिलीवर कर रहा हूं। 30% मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत, 50% ईमानदारी, ईमानदारी और सिर्फ ईमानदारी, 20% हुनर, हुनर और सिर्फ हुनर। 100% तरक्की की मंजिलें अगर आप तय करना चाहते हो तो आपको इन तीनों जीनों पर से होकर के जाना पड़ेगा। ये तीनों सिफात अपने अंदर बदर्जा उत्तम, बदर्जा ज़रूरत अपनानी पड़ेंगी। इनको खुलूसे दिल से इन पर अमल भी करना पड़ेगा। नंबर 1 मेहनत, नंबर 2 ईमानदारी और नंबर 3 हुनर। जाओ बेटा, अगर आज की बातों में से तुम्हें किसी बात की समझ नहीं आई है तो मुझसे पूछ लो। अब वो बच्चे के चेहरे पे खुशी की एक लहर दौड़ गई। खुशी की लहर क्या दौड़ी कि उसने जाकर शूज पॉलिश करने का काम छोड़कर एक वर्कशॉप में मैकेनिक का काम सीखने लग गया, मैकेनिकल का। और वहां से उसने उस्ताद के, इसी उस्ताद के जिसके साथ सिर्फ एक दिन मुलाकात हुई, ये लोग होते हैं किंग मेकर, किंग तो नहीं होते लेकिन किंग मेकर होते हैं। उस बच्चे ने
वर्कशॉप में, गाड़ियों की वर्कशॉप में उसने हुनर सीखना शुरू किया। और बाकी के जो दो काम थे, ईमानदारी, दयानतदारी और मेहनत, सबसे पहले वो वर्कशॉप में आता नौकरी करने के लिए और सबसे आखिर में जाता। सबसे पहले आकर सफाई करता दुकान की, मालिक की दुकान की, जहाँ मुलाजम था, और कभी छुट्टी नहीं की। पूरे पूरे वक्त पे आना है कि पूरे वक्त पे जाना है। और ग्राहकों के साथ बेईमानी का रवैया नहीं रखा उसने। और हुनर उसको अल्लाह ताला ने अता कर दिया। अब उस बच्चे में तीनों बातें जमा होने का नतीजा क्या हुआ कि वो बच्चा एक कार साज, कार बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक बना। जी हाँ, एक कार, ये यूरोप की बात सुना रहा हूं आपको, पाकिस्तान की नहीं। एक कार बनाने वाली कंपनी का मालिक बना और उसके बाद उसने बदरजा उत्तम कोशिश की कि मैं उस बंदे को, उस टीचर को, उस उस्ताद को तलाश कर लूं। लेकिन वो ताजीज रोता रहा वो बंदा, सिर्फ इसलिए कि वो टीचर उनको दोबारा मिल नहीं सके। वल्लाहु आलम वो मुल्क छोड़ गए या फिर अल्लाह के पास चले गए, वफात पा गए, क्या हुआ उनको पूरी दुनिया में बावजूद कोशिश के वो आखिरी वक्त तक वो बंदा, वो फैक्ट्री का मालिक, कार बनाने वालों का मालिक, आखिरी दम तक रोया करता था, रोता था, कहता था मेरी जिंदगी में सिर्फ एक कमी रह गई है कि मैं अपने उस मोहसन को दोबारा जिंदा देख सकूं, अपनी जिंदगी में अपनी आंखों के साथ एक दफा उसे देख लूं, उनका चेहरा देख लूं। लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मैं अपनी इस हसरत को, इस ख्वाहिश को, अपनी विश को फुलफिल नहीं कर सका। लाखों करोड़ों डॉलर और पाउंड कमाने के बावजूद मेरी जिंदगी में ये कमी है और रहेगी। ये थी जी नाज़रीन इकराम आज की कहानी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। जी बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ। आज का सवाल नोट फरमाएं। आप जानते हैं कि लंदन में, इंग्लैंड का शहर है लंदन, ग्रेट ब्रिटेन का, इंग्लिस्तान का शहर लंदन, उसमें ज़ेरे ज़मीन रेलवे का निज़ाम है। अंडरग्राउंड ट्रेनें चलती हैं, जमीन के नीचे नीचे स्टेशन बने हुए हैं। और आप में से कोई बता सकता है कि ये अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम लंदन में कब शुरू हुआ था, इसका इफ्तिताह कब हुआ था, इसका आगाज कब हुआ था? कल जब मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा आप हैरान होंगे कि ये उस वक्त की बात है जब हमारे यहाँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह में कार का भी रिवाज नहीं था। वहां पे अंडरग्राउंड रेलवे, अंडरग्राउंड ट्रेनें चल रही थी। हमें अभी कौम बनने में वक्त लगेगा, तरक्की करने के, बायसीयत कौम तरक्की करने के लिए हुजूम से कौम बनना ज़रूरी है। फिलहाल हम कौम नहीं, एक हजूम की तरह फिर रहे हैं जिनकी मंजिल का कोई तयन ही नहीं है। जिसका जिधर को मुंह है वो उधर को जोर लगा रहा है। जब हम कौम बनकर अपनी एक सिमत मुकर्रर कर लेंगे, अपनी एक टारगेट कर लेंगे फिक्स कि हमने इस मंजिल को पाना है और इधर को जाना है और मिलके जोर लगाएंगे, तो फिर पाकिस्तान को, मुल्क अजीज को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन सिमत का तयन बुनियादी शर्त है जिससे हम पहलू तही कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, मतवातर इससे नजरें चुरा रहे हैं, सिमत का तयन नहीं कर पा रहे। और ये कौमें किया करती हैं, हुजूम नहीं किया करती। ये थी जी आज का सवाल और आज की बात। चलिए कर लेते हैं, वैसे हो तो गई है आज की बात, है ना, फिर भी चलिए खानापुरी के लिए आज की बात कर लेते हैं। आज की बात तो नहीं कहना चाहिए, वो सुबह के प्रोग्राम में होता है। आज का शेर,
آج کا شعر سائیں اس طرح سے ہے کہ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، اپنے اس چینل کا بھی۔ رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔